Wish you a very happy marriage anniversary to Som and Soumya. Soumya is the jewel of the family, and she brought another precious jewel, Soumya. We are so lucky and blessed. May God bless you both throughout life and live happily with your family. सौम भैया, सौम्या भाभी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। 10 साल के पड़ाव के बाद ये शुभ घड़ी आई। As our elders will say, जुग जुग जियो, youngsters will say, ऐश करो, खाओ एंड पियो। पर चलो वहां से शुरुआत करते हैं जहां से आप दोनों की किस्मत जुड़ी, जब राजस्थान के मुंडे को मिली दिल्ली की कुड़ी। 10th anniversary Som Soumya. It's been a decade and I can't believe it. I still remember the day Rupamasi called me to ask me to go and meet Soumya. I was so nervous, but Soumya wasn't. She was super confident and super charming and effortless in her trouser and kurti with her big, beautiful eyes. And she won our hearts. We were so impressed when we started talking to her, and I don't remember exactly what we spoke about, but she was so confident and she was so well spoken, and we felt that this was the kind of girl Som should get married to. I should also emphasize on the fact that uncle auntie made us very very comfortable. We felt at home. They were so nice and so welcoming, and the overall vibes which we got from all three of them were very positive. In fact, the first thing we did after coming out of the colony was call Rupamasi and tell her that we really liked them and we really liked Soumya, and that they should seriously think about this match. And I'm glad that Som Soumya could find a companion in each other and they chose to get married. अरे अरे अरे, थोड़ा और पीछे चलें। चलो आओ इनके बचपन से शुरू करें। मिलते हैं छोटे सौम्य से, जो कि ट्रू टू हिज नेम वाज वेरी शांत, सॉफ्ट स्पोकन, अडोर्ड बाय एवरीवन, बचपन से लेके आज तक कभी न पड़ी डांट। Admired by Suhas and popular amongst his friends, kind-hearted, good sense of humor, and chatpate comments. First time I met Jiju, I think it was in Gurgaon in Lemon Tree we had met, and Jiju आए थे अपने दो friends के साथ and we had all met. So the one thing which me and Jiju gelled upon was that we both have done engineering from the same place. So दोनों ने जयपुर से करी है, जयपुर में इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ पे. So I was in some other college, he was in another college. Definitely different years and all that. But we used to go to the same place for eating parathas and chai and all that. अग्रवाल की थड़ी थी अगर उन्हें याद है. तो वो चीज़ कुछ थी and something clicked between us also. Definitely it had to click between Didi and Jiju, but in terms of me gelling with him also, it just clicked. And after that I remember, I still remember that when they were about to get married, so I gifted Jiju a shirt. उस पे लिखा था गेम ओवर, स्माइलिंग ब्राइड एंड एक ग्रूम था. मेरी बहन से शादी हो रही है और मैंने जीजू को गिफ्ट दिया गेम ओवर. सो दैट इज हाउ इट ऑल वेंट. एंड आई स्टिल रिमेंबर शादी का जो दिन था, जब शादी थी, तो मुझे ये पता है विदाई नेक्स्ट डे मॉर्निंग में होनी थी. तो रात को एवरीथिंग वेंट एंड फेरे वेरे हो गए, सब अपने अपने घर निकल गए. पंगा क्या हुआ, सब अपने अपने घर निकल गए. एंड में मैं, दीदी और दीदी की एक फ्रेंड रिधिमा दीदी वहां पे रह गए. मुझे कार ड्राइव करनी आती नहीं थी ठीक से. हम तीनों को छोड़ के सब चले गए. सब इतने थके हुए थे, या वो था कि भाई हो गई शादी अब जाने दो, छोड़ के निकल लिए. फिर somehow we reached and all that. So it was so much fun that time also, and since then also it has been so much fun. Be it your वो जो पार्टीज होती थी बीका जी का प्लेस वाले घर में, हम बॉन फायर करते थे. साकेत में आई स्टिल रिमेंबर पीएस पे डांस रेवोल्यूशन खेलते थे. तो उसमें तो बड़ा मजा आता था कि जब स्क्रीन पे जो भी हो रहा होता था, मैं और दीदी मैच करने की कोशिश करते थे. और जब जीजू डांस करते थे, जो स्क्रीन में डांस कर रहा है वो जीजू को मैच करने की कोशिश करता था, क्योंकि उनका अलग ही डांस है, कुछ समथिंग डिफरेंट ऑल टुगेदर. छोटी सी सौम्या जब आई तो अंकल आंटी वर ब्लेस्ड विद अ प्यारी सी गुड़िया.
भोला सा चेहरा, मासूम सी हंसी, मानो जैसे जादू की पुड़िया। Cherished by her friends, छोटे भाई की आइडल, ब्यूटी विद ब्रेन्स is her perfect title. No wonder जब कुंडली मिलाई तो it was a perfect match. Parents high-fived each other and said, "What a great catch." सौम और सौम्या, तुम लोगों को शादी की 10th एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये 10 साल कैसे निकल गए पता चल नहीं। आज मेरा दामाद 10 इयर्स के हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही हंसते खेलते पूरी ज़िंदगी निकलती रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे तो तुम्हारी शादी की विदाई के टाइम बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया था उस टाइम। सौम्या ऐसे हंसती खेलती हुई विदा हुई थी और बाद में पता चला था सारा सामान यहीं छोड़ गई थी और उसके बाद सुहास को बेचारे को आना पड़ा था सामान लेने। तो वो सबसे शायद फ़नी मोमेंट था तुम्हारी शादी का और वो मुझे आज तक याद है और बहुत अच्छा रहा था और ये 10 साल बहुत अच्छे निकले। और ऑल थैंक्स टू रूपम जी, अमित जी और सारे आप लोग जो सौम्या की ससुराल वाले हैं, बल्कि कहना चाहिए सौम्या के घर वाले हैं। आप लोगों ने सौम्या को बहुत प्यार, बहुत मान दिया है। धन्यवाद। नमस्ते। वहां से स्टार्ट हुई इन दोनों की ऑसम सी जर्नी, फ्रॉम जयपुर टू फीजी टू न्यूजीलैंड टू दिल्ली की गर्मी। मुझे तो बस फिजी का वो दिन याद है जब हम लोग ने रिसेप्शन किया। उसके बाद सौम्या और सौम्य को हमने क्रूज़ पे भेजा और जब ये लोग थक के डैंडी पहुँचे तो हम इसके लिए खाना लेके गए। हम लोग का प्लान था कि हम लोग बाहर खाएंगे ये वो, पर मैंने कहा नहीं, हमें बहुत थक के बच्चे आए हैं, हम इनके लिए घर से खाना बना के ले जाते हैं। और वो खाना देख के दोनों बच्चे इतने खुश हुए, वो खुशी मैं आज भी नहीं भूल सकती। मैं दाल बाटी चूरमा बना के ले गई और सौम्या ने खूब खुशी से खाया और कहा कि इतने दिन बाद मुझे खाना मिला है जैसे। पर बाद में मुझे पता चला कि सौम्या ने कभी दाल बाटी चूरमा खाया ही नहीं था और उसने सिर्फ हम लोग की खुशी के लिए कुछ कुछ खा लिया। सच में सौम्या, तुम्हारी ये सब बातें, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा अफेक्शन मेरे परिवार के लिए, हम दोनों के लिए बहुत है। आके सेटल डाउन किए सेक्टर 10 में, बनाया वो घर अपना और साथ में शुरू किया जिंदगी का एक सुंदर सा सपना। हर दम मजा करने वाले, be it parties, movies or travel, Soumya in all her roles, daughter, bahu, wife and bhabi, always bedazzled. सौम और सौम्या के विवाह के 10 वर्ष हो गए। इसका एहसास केवल नैशा और रेहान को देखकर ही हो पाता है, नहीं तो यह 10 वर्ष कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। सौम और सौम्या के ये 10 वर्ष उनके लिए कैसे निकले ये तो वही जाने, पर हम लोगों के लिए ये 10 वर्ष पंख लगा कर उड़ गए। सौम और सौम्या दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होनहार विद्वान के होठ चीखने पर ये मुहावरा पढ़ा और सुना ही था, पर सौम्या के संदर्भ में मैं कह सकता हूँ कि हमने इसे महसूस किया है। जब सौम्या शायद 10th क्लास में थी और बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, तो हमारी माता जी को ब्रेन अटैक पड़ा और वो गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। अलका और मैं दोनों बारी बारी से हॉस्पिटल में रहते थे। मैं सर्विस के बाद रात में रुकता था हॉस्पिटल में और सारा दिन अलका वहाँ पे हॉस्पिटल में रहती थी। तो उस समय में घर की पूरी जिम्मेवारी सौम्या पर ही थी और उसने पूरी तरह से बखूबी निभाया था। आज के इस समय में जब अमित जी और रूपम जी सिंगापुर गए हुए हैं और घर को देखना है, ना कोई माई आ रही है, ना कोई काम करने वाली आ रही है और साथ ही साथ ऑफिस का भी काम करना पड़ रहा है और बच्चों की पढ़ाई का भी एक नया ढंग शुरू हो गया है कि कंप्यूटर के सामने बैठी, तो उस पूरी जिम्मेवारी को सौम्या आजकल उठा रही है।
रूपम जी जैसी सास तो बड़े भाग्य से मिलती हैं जो बहू को मतलब किसी भी काम करने से पहले खुद आगे आ जाती हैं। और इस समय में जब हम कहते हैं ना कि अमित जी और रूपम जी सिंगापुर में हैं, तो सौम की पूरी मदद से सौम्या पूरी तरह से वही जिम्मेवारी, वही अपना पुराना रूप दिखा रही है। और यही कहने पड़ेगा कि इस समय में उस चिकने चिकने पत्तों के दर्शन पुनः हो रहे हैं जो किसी होनहार की निशानी होते हैं। लाइफ बढ़ी आगे। क्यूट से रेहान के बने दोनों मम्मा पापा, which marked their entry into a new phase of life called parenthood का सियापा। बहुत मुश्किल है उन क्षणों को समेटना जब रेहान को पैदा होने के बाद मैंने पहली बार गोद लिया। शब्दों में क्या व्यक्त करूं, सभी अनुभूतियां तो अब हो गई हैं विगत के पार। नन्ही सी जान, छोटे छोटे हाथ पांव और उसमें धड़कता हुआ छोटा सा दिल, जो मेरा ही एक टुकड़ा है, मेरी संतति है। सोचा था कि यही इति है, यही मेरी इच्छाओं की समाप्ति होगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा इस छोटे से इंसान ने सहसा ही मुझे जगा दिया कि जो रिटायरमेंट के बाद सो सा गया था। एक छोटा सा खिलौना, उसकी बात सुलभ व्यवहार, उसको आकर्षित करने के लिए फनी बिहेवियर, सारी इच्छाएं मानो पुनः जागृत हो गई थी। अपने देवर की बारात लेके जब सौम्या भाभी चली, कंप्लीट की बड़े भाई और भाभी की ड्यूटी क्वाइट रिस्पॉन्सिबली। हाय भाभी, सौम्या भैया, हैप्पी 10 इयर्स। मेरा टॉपिक था अ मेमोरी ऑफ बोथ ऑफ यू ड्यूरिंग आवर वेडिंग, मी एंड वेगास। तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, शादी से एक दिन पहले आपने मुझसे कहा, सुहास सोच ले शादी करनी है कि नहीं करनी है, देख अभी नहीं करनी है, कुछ नहीं बिगड़ा है, कोई बात नहीं, मना कर दे लड़की को। खैर आपकी बात सही थी, अनफॉर्चुनेटली शादी कर दी, अब पछता रहा हूँ। बट थैंक यू फॉर द एडवाइस एंड गो फॉर अनदर 10 इयर्स। दोबारा से चाची बनाया नई नवेली दुल्हन को, डॉल सी नैशा को वेलकम किया विद pomp and show। We had just come back from a honeymoon, from all the fun travel, haven't gone to New Zealand, and now we're like, arey, now it's so boring, back to life, back to normal life, and nothing to look forward to. And then a couple of days later, we get a call from Samar Bhaiya and Bhabhi telling us that we're going to have another baby in the house. And I thought that was like the best news to come back to, and I got very, very excited, and it was just, I think feelings can't describe how excited we were, Suhas and I were. And then the most special memory I have is when the first time when Nesha came to Singapore, and मैं office से घर आती थी, and I wouldn't have seen Nesha the entire day, so I would take Nesha, I would put her down in my bedroom, and I would be changing out of my work clothes and getting ready for chilling or going out somewhere, and I would keep Nesha on the bed and I would keep talking to her, and Nesha would just look at me and she'd laugh, and what I would talk to her about was the funniest. So I would just talk to her and be like, Nesha, you know, you've got to make friends with me, पता नहीं तुम्हारे कितने boyfriend/girlfriends हो future में, तो मम्मी पापा तो allow नहीं करेंगे, so you have to come back and you have to look for Chachi will be the one who will have your back. And she would just laugh her head off. And I got into a lot of trouble from Bhabhi for saying that to her, but nonetheless, I think that's my favoriteest memory of having received the news and of having seen little Nesha and making me a Chachi all over again, and this time I got to see it from the onset. अब तो फैमिली कंप्लीट, अब आगे और क्या? यही सोचते सोचते वो बन गए ताई और ताया। ऐसे ही हंसी खुशी चलती रहे आप दोनों की लाइफ, और जल्दी से आ जाए सौम भैया आपके ब्रदर इन लॉ की वाइफ। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता,
फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के